ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ عرب کے کسی ملک پر ایک سلطان حکومت کرتا تھا۔ اس کے 4 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ اسے حکومت کرتے ہوئے بہت زمانہ گزر گیا تھا، یہاں تک کہ وہ بوڑھا ہو گیا۔ اس کے سر داڑھی اور مونچھوں کے بال برف کی مان سفید ہو گئے اور وہ آنے والے دنوں میں بیمار رہنے لگا۔ ایک دن تو ایسا بیمار ہوا کہ بچنے کی کوئی امید ہی باقی نہ رہی۔ تب زندگی سے مایوس ہو کر اس نے اپنے 4 بیٹوں کو پاس بلایا اور یوں کہنے لگا، پیارے بیٹوں، میں اب مرنے والا ہوں، اس لیے جو کچھ میں تم سے کہوں گا اسے غور سے سننا۔ یہ سنتے ہی 4 بیٹوں کی غم سے بڑی بری حالت ہوئی۔ انہوں نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ انہیں اپنے باپ سے بڑی محبت تھی۔ لڑکوں کو روتے دیکھ کر سلطان نے خاموش رہنے کی ہدایت دی اور کہا، عزیز بیٹوں، جو دنیا میں آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہی ہے، یہی قدرت کا قانون ہے۔ لہٰذا تم رونے دھونے کی بجائے میری بات کو غور سے سنو اور اس پر عمل کرنے کا وعدہ کرو۔ بہت بہتر ابا جان، آپ فرمائیے، ہم سن رہے ہیں۔ لڑکوں نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، دیکھو، جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو لوگ مجھے نہلا دہلا کر کفن پہنائے اور پھر میری میت قبرستان میں لے جا کر دفنا دیں گے۔ اس کے بعد مسلسل 3 رات تک تم میں سے جو کوئی میری قبر پر پہرا دے گا وہی میرے تاج و تحت کا حقدار ہوگا۔ تم میں سے جو لڑکا سلطان بن جائے اس کے لیے میرا حکم یہ ہے کہ وہ اپنی بہنوں کی اچھی طرح دیکھ بھال کریں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور جب تمہاری بہنیں جوان ہو جائیں تو ان کی شادیاں کر دیں۔ اور لڑکیوں کی شادیاں کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو کوئی بھی پہلی بار تمہارے پاس آ کر کسی لڑکی سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کرے اس کے ساتھ لڑکی کی شادی کر دینا، خواہ آنے والا کوئی انسان ہو یا رین آسمان پر اڑنے والا پرندہ ہی کیوں نہ ہو۔ وعدہ کرو تم اپنے باپ کی اس وصیت پر سچے دل سے عمل کرو گے۔ 4 لڑکوں نے قسم کھا کر عہد کیا کہ وہ اس وصیت کو دل جان سے پورا کریں گے، اگرچہ وہ سب دل ہی دل میں بہت حیران تھے کہ اس عجیب و غریب وصیت کا آخر مطلب کیا ہے۔ انہوں نے بہت دماغ لڑایا لیکن کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آ سکا۔ آخر انہوں نے سوچا کہ مرتے وقت بوڑھے سلطان کے ہوش و حواس جاتے رہے، اسی لیے اس نے ایسی بے معنی وصیت کر دی ہوگی، لیکن انہوں نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کی وصیت پر ضرور عمل کریں گے۔ اس لیے جب سلطان مر گیا اور وہ اسے قبرستان میں دفن کرائے تو پہلی رات سب سے بڑے بیٹے نے اس کی قبر پر پہرا دینے کا فیصلہ کیا۔ سورج غروب ہوتے ہی وہ باپ کی قبر پر پہنچ گیا۔ جب اندھیرا زیادہ ہوا تو بڑی بڑی چمگادڑ فضا میں پرواز کرنے لگی۔ ان کی آنکھوں سے زرد رنگ کی چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ بڑا بیٹا یہ دیکھ کر بہت خوف زدہ ہوا اور اس کے لیے قبرستان میں ایک ایک پل کاٹنا دشوار ہو گیا۔ آدھی رات ہوتے ہی قبرستان میں سے بھیانک اور ڈرنی چیخیں بلند ہوئیں، جیسے بدرو چلا چلا کر رو رہی ہے۔ یہ آوازیں ایسی ہلنا تھیں کہ بڑے بیٹے کا کلیجہ اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس کا بدن خوف سے تھر تھر کانپنے لگا اور صبح ہونے سے پہلے ہی قبرستان سے بھاگ نکلا۔ اگلی رات دوسرا بیٹا اپنے باپ کی قبر پر پہرا دینے کے لیے گیا، اس کا بھی یہی حال ہوا۔ پھر اس کے بعد تیسرے دن تیسرا بیٹا قبر پر پہرا دینے کے لیے گیا، اس کا بھی یہی حال ہوا اور بھاگتا ہوا گھر آ گیا۔ چوتھی رات سب سے چھوٹا بیٹا قبرستان جانے کے لیے تیار ہوا۔ اس کا نام احمد تھا اور اپنے تینوں بھائیوں سے زیادہ عقلمند، ہوشیار اور نیک تھا۔ اس نے اپنی تلوار کمر سے باندھی اور قبرستان میں جا پہنچا۔ بڑے بھائیوں نے اس کا مذاق اڑایا اور کہا، جو کام ہم سے نہیں ہو سکا وہ احمد کیا کرے گا؟ کیا ہم سے زیادہ یہ بہادر ہے؟ دیکھ لینا، ابھی خوف سے لرز کانپتا جلدی سے گھر آ جائے گا۔ پھر احمد باپ کی قبر پر جاگتا رہا۔ ننگی تلوار اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے بڑوں سے سن رکھا تھا کہ تلوار کے سامنے بڑے بڑے خبیث جن اور بھوت بھاگتے ہیں، ہر طرف سنا تھا۔ جب مشرق کی جانب سے روشنی کی سنہری لکیر نمود ہوئی تھی، یکایک اس نے قبرستان کی دیوار کے قریب ایک خوفناک دیو کو کھڑے دیکھا اور آنکھوں سے آگ کے شعلے اٹھ رہے تھے۔ اس نے وہیں سے اپنے بازو پھیلائے۔ یہ بازو احمد کو پکڑنے کے لیے بھرنے شروع ہوئے اور بھرتے بڑھتے بہت نزدیک آ گئے۔ احمد نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ کسی درندے کے پنجوں کی طرح مڑے ہوئے ہیں اور ان پر لمبے لمبے نکیلے ناخون ہیں۔ احمد نے عتمیان سے تلوار نکالی۔ اس دیو نے خوفناک چیخ ماری اور غائب ہو گیا۔ احمد نے اس کا کٹا ہوا پنجا اٹھا کر اپنے کرتے کی جیب میں رکھ لیا۔ اتنے میں صبح ہو گئی۔ وہ قبرستان سے نکل کر محل میں واپس آ گیا، کیونکہ اس نے اپنے باپ کی وصیت پوری کر دی تھی۔ اس لیے اسے شاہی لباس پہنا کر تخت پر بٹھایا گیا اور تمام درباریوں نے نظر پیش کی۔ شاعروں نے اس کی تعریف میں قصیدے پڑھے۔ احمد نے سب کو ان کی حیثیت کے مطابق انعام و کرام اور کھلت عطا کی۔ اس کے بڑے بھائیوں نے بھی اسے ملک کا سلطان مان لیا اور اطاعت قبول کی۔ اسی دوران میں سلطان احمد کی 4 بہنیں جوان ہو چکی تھیں اور اب وہ جلدی سے جلدی ان کی شادی کر دینا چاہتا تھا۔ لیکن مشکل یہ تھی کہ شہزاد ہوں کی حیثیت کے مطابق رشتے کہاں تلاش کرتا پھرے۔ اسے اپنے باپ کی عجیب و غریب وصیت کا خیال بھی آتا تھا،
जिसने मरते वक्त कहा था, जो कोई भी पहली बार तुम्हारे पास आकर किसी लड़की से शादी करने की ख्वाहिश जाहिर करे, उसके साथ उसकी शादी कर देना, हवा आने वाला कोई इंसान हो, दहो और या आसमान पर उड़ने वाला परिंदा। एक दिन सुल्तान अहमद अपने दरबार में बैठा लोगों के मुकदमे सुन रहा था। एक खौफनाक सूरत का शेर वहां आया। उसे देखते ही सब दरबारी और पहरेदार डरक भाग गए, लेकिन सुल्तान अहमद अपनी जगह पर बैठा रहा। शेर ने उसके करीब आकर दुम हिलाई और हल्की सी आवाज में राया और अचानक इंसानी आवाज में कहने लगा, अस्सलाम वालेकुम ए सुल्तान अहमद, मैं तेरे पास एक दरख्वास्त लेकर हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद है तू अपने मरहूम वालिद की वसीयत पर अमल करते हुए मेरी यह दरख्वास्त कबूल करेगा। बयान करो तुम्हारी क्या दरख्वास्त है। सुल्तान अहमद ने कहा, अगर मैं काबिल हुआ तो तुम्हारी दरख्वास्त ज़रूर कबूल करूँगा। मैं आपकी सबसे बड़ी बहन से शादी करना चाहता हूँ, बस यही मेरी दरख्वास्त है। सुल्तान बड़ा हैरान हुआ और कहने लगा, मगर यह कैसे मुमकिन है, एक लड़की की शादी जंगल के दरिंदे से कर दी जाए। सुल्तान अहमद ने हैरत से कहा, कभी ऐसा हुआ है जनाब? आप अपने वालिद की वसीयत याद कीजिए, उन्होंने आपको क्या हिदायत की थी? शेर ने जवाब दिया, बेहतर, मैं अपने वालिद की वसीयत ज़रूर पूरी करूँगा। सुल्तान अहमद ने कहा और उसी वक्त अपनी सबसे बड़ी बहन की शादी उस शेर के साथ कर दी। शेर दुल्हन को अपनी कमर पर सवार करके वहां से चला गया। वक्त गुजरता गया। सुल्तान अहमद को अपनी बड़ी बहन और उसके शौहर शेर के बारे में कुछ पता न चला कि वह कहाँ और किस हाल में है। सुल्तान अहमद ने सोचा, चौथी बहन की शादी शायद किसी इंसान से होगी। मुनासिब ये है कि किसी जानवर या दरिंदे के आने से पहले मैं अपनी बहन की शादी किसी अच्छे आदमी से कर दूं। अब ज्यादा वक्त जाया करना ठीक नहीं। खुदा ने चाहा तो कल ये काम सरंजाम दूंगा। अगले रोज सुल्तान दरबार में तख्त पर बैठा ही था कि एक देव बेशकीमत कपड़े पहने हुए नमूद हुआ। उसके हाथ पर लंबे लंबे बाल थे, लेकिन उंगलियों में निहायत कीमती अंगूठियां थीं। देव ने आते ही सुल्तान अहमद से कहा कि वह चौथी शहजादी से शादी करने का ख्वाहिशमंद है और इस उम्मीद पर आया है कि सुल्तान अहमद इनकार नहीं करेगा, क्योंकि उसे अपने बाप से किया हुआ वादा पूरा करना है। सुल्तान ने चौथी बहन की शादी देव से कर दी और वह उसे अपने साथ लेकर चला गया। मगर लोगों को मरहूम सुल्तान की वसीयत का भी पूरा इल्म था और वह जानते थे कि उसकी हर बात हिकमत और दना से खाली नहीं होती। चुनांचे लोग कुछ अरसा रो धोकर खामोश रहे। बरसों बीत गए, लेकिन शहजाद हों की कोई खैरो खबर मालूम ना हुई। इधर सुल्तान अहमद शहजाद हों के रुखसत होने के बाद बहुत रंजीदा था। उसकी तन्हाई दूर करने की खातिर वजीर अमीरों ने यह तजवीज़ पेश की कि अब सुल्तान को भी शादी कर लेनी चाहिए, ताकि शहजाद हों के जाने से महल की खोई हुई रौनक वापस आ जाए। सुल्तान ने शादी की तजवीज़ मंजूर कर ली, मगर सवाल यह था कि वह अपने लिए ऐसी बीवी कहाँ तलाश करे जो खूबसूरत भी हो और वफादार भी, और जो अपनी मीठी मीठी बातों से उसका दिल बहलाया करे। सुल्तान की सल्तनत से कई कोसों दूर पहाड़ों की बुलंद चोटियों पर एक आलीशान किला था और उस किले में एक खूबसूरत शहजादी रहती थी। उसका नाम खदीजा था। खदीजा के माँ बाप मर गए थे और अब वह इस किले में अकेली ही रहती थी। सल्तनत का काम वजीर आजम के सुपुर्द था, लेकिन वह हर काम में शहजादी खदीजा से मशवरा किया करते थे। शहजादी की ख्वाबगाह में उसके ऐन सामने वाली दीवार पर एक सुनहरी आईना लगा हुआ था। यह आईना शहजादी को उसकी खाला ने तोहफे में दिया था, जो तमाम मुल्क में दाना औरत के नाम से मशहूर थी। यह लिस्म सुनहरी आईना भी उसी ने बनाया था। हर रोज सुबह सवेरे शहजादी खदीजा की आंखें खुलती तो वह उस आईने के सामने खड़ी होकर कहती, ऐ सुनहरी आईने, बता मुझसे शादी कौन करेगा? और सुनहरी आईने में से हमेशा आवाज आती, ऐ शहजादी, तू एक बहादुर और खूबसूरत नौजवान सुल्तान की बीवी बनेगी, आईने की। ये बात सुनकर शहजादी ठंडी आह भरकर कहती, न जाने इस वक्त वह सुल्तान कहाँ होगा और क्या कर रहा होगा, और न मालूम कब मेरी इससे मुलाकात होगी। एक दिन जब आईने ने हस्बे मामूल यही जवाब दिया तो शहजादी ने अपनी बूढ़ी दाया को तलब किया। ये वो औरत थी जिसने खदीजा को बचपन में अपना दूध पिलाया था और शहजादी उसकी बड़ी इज्जत करती थी। दाया आई तो शहजादी ने उसे कहा कि अम्मा जान, मैं अकेली रहकर बड़ी उकता गई हूँ। तुम जानती हो सल्तनत का सारा काम वजीर आजम ने संभाल रखा है। रया खुश है। अब मैं चाहती हूँ कि इस किले से निकलकर बाहर की दुनिया देखूं। उससे एक तो मेरा दिल बहलेगा, दूसरा मेरे इल्म में भी इजाफा होगा। तुम्हारी क्या राय है अम्मा? दाया खुश होकर कहने लगी, बेटी मैं क्या और मेरी राय क्या, जैसी तुम्हारी मर्जी मैं तैयार हूँ। बोलो कहाँ चलोगी? पहले हम मुकद्दस शहर मक्का की जियारत को चलेंगे। खदीजा ने कहा, लेकिन ज्यादा लाओ, लश्कर साथ ले जाने की जरूरत नहीं। मैं एक आम औरत के बेस में सफर करना ज्यादा पसंद करूंगी, ताकि लोग मेरी तरफ तवज्जो न करें। शहजादी बनकर बाहर जाऊंगी तो बेशुमार कंग फकीर तंग करेंगे। इसके अलावा रास्ते में उन डाकुओं का भी तो खतरा है जो बड़े बड़े काफिरों को लूट लिया करते हैं।
हम अपने साथ ज्यादा से ज्यादा 2 नौकर ले जाएंगे और कुछ जरूरी साजो सामान। इधर शहजादी का छोटा सा काफिला किले से निकलकर मक्का जाने वाली राह पर आया। इधर यकायक सुल्तान अहमद का दरबार में बैठे बैठे जी घबराने लगा। उसने सोचा कहीं सैरो सेहत के लिए चलना चाहिए। बहुत दिन हो गए, महल से बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। चुनांचे उसने अपने एक राजदार वजीर को साथ लिया और वह घोड़ों पर सवार होकर महल के बाहर निकले। इत्तेफाक से सुल्तान और उसका वजीर उसी रास्ते पर आ गए जहां से शहजादी खदीजा का छोटा सा काफिला गुजर रहा था। शहजादी के नौकरों ने सुल्तान को बताया कि हम काबे की जियारत के लिए जा रहे हैं। यह सुनकर सुल्तान बहुत खुश हुआ। उसने सोचा क्यों ना हम भी मक्का मुकर्रमा की जियारत को चले और इस काफिले में शामिल हो जाएं। सुना है रास्ते में डाकू लुटेरे होते हैं, इन बचार औरतों को तंग करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो हम इनकी हिफाजत कर सकेंगे। वजीर ने जवाब दिया कि यह ख्याल तो बहुत अच्छा है। गर्ज ये दोनों भी इस काफिले में शामिल हो गए और अपने आप को ताजिर जाहिर किया। उन्होंने शहजादी खदीजा को बताया कि वह अक्सर मक्का मदीने का सफर करते रहते हैं और इन रास्तों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। शहजादी खदीजा ने उन्हें बड़ी खुशी से अपने साथ सफर करने की इजाजत दे दी और यूं रास्ता तय होने लगा। शहजादी खदीजा, क्योंकि उसने अपना चेहरा सिया निकाबी ने सुल्तान अहमद को अच्छी तरह देखा और उसे यह शरीफ नौजवान बहुत अच्छा लगा। दिन रात फासला तय करते हुए आखिर वह मक्का मुज़मा पहुंच गए। उन्होंने एक सराय में अपना सामान रखा और फिर खाना काबा की जियारत के लिए गए। वहां बेशुमार लोग काबे का तवाफ कर रहे थे। उनसा ने भी काबे की इमारत के गिर्द 7 चक्कर लगाए। इन चक्कर को तवाफ कहते हैं। काबे की जियारत के बाद ये लोग वापस सराय में आए। इत्तेफाक से सुल्तान अहमद ने शहजादी खदीजा की एक झलक देख ली। उसने दिल में कहा, यह चेहरा तो किसी शहजादी का ही हो सकता है। मैं इस लड़की से शादी करूंगा, लेकिन कुछ खबर नहीं कि वह कौन है और उसकी शादी हो चुकी है या नहीं। रात हुई तो उसने वजीर से अपने इस ख्याल का इजहार किया। वजीर कहने लगा, हुजूर, ये कौन सी बड़ी बात है। वह एक आम औरत है। जब उसे पता चलेगा कि आप एक मामूली सुदागर नहीं, सुल्तान अहमद है, तो वह खुशी से आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। बहरहाल तुम इसके बारे में अता पता करो, कौन है और इसके क्या इरादे हैं। सुल्तान ने कहा, मेरी राय में तो इसकी बूढ़ी दायां से सारा हाल दरियाफ्त करो और फिर मुझे बतलाओ कि इसने क्या कहा। आपके हुक्म की तामील की जाएगी। वजीर ने गर्दन झुकाकर कहा और अगले रोज सुबह सीधा बूढ़ी दया के पास पहुंचा। सलाम अम्मा जान, मजाज तो अच्छे हैं। आपके कोई खिदमत मेरे लायक हो तो बयान फरमाइए। मैं और मेरा साथी हर तरह की खिदमत बजा लाएंगे। वजीर ने दाया से कहा। बूढ़ी दाया ने उसे दुआएं दी और अपने पास ही बिठा लिया। फिर दोनों में बातें होने लगीं। आखिर वजीर ने शहजादी खदीजा के बारे में उससे सब कुछ मालूम कर लिया। फिर वह सुल्तान से कहने लगा, मुबारक हो, मैंने इस खातून के बारे में उसकी दाया से सब बातें मालूम कर ली हैं। उसका नाम शहजादी खदीजा है और वही भी एक सल्तनत की मालिक है। उसके ख्वाबगाह में एक सुनहरी आईना लगा हुआ है जो उसको हर रोज यह बताता है कि उसकी शादी एक सुल्तान से होगी। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, सुल्तान ने खुश होकर कहा। फिर उसने सोचा इस मामले पर उसे खुद शहजादी से बात करनी चाहिए। वह मौके की तलाश में रहा, मगर उसे यह मौका न मिल सका क्योंकि शहजादी की हिफाजत हर वक्त उसके मुलाजिम करते थे। कुछ दिनों बाद उनका काफिला मक्के से निकलकर शहर ताइफ की जानिब रवाना हुआ, जहां ठंडे पानी के चश्मे और खजूरों के दरख्त थे। इसके अलावा वहां अंगूरों के भी बहुत से बागत थे। सारा इलाका निहायत खूबसूरत और सरसब्ज था। अभी वह रास्ते में ही थे कि एक रात जबरदस्त तूफान आया। बिजली की कड़क और बादल की गर्ज से दिल दहल जाते थे। हर तरफ घूप अंधेरा था। कभी कभी बिजली चमकती थी तो कुछ दिखाई दे जाता था। फिर मौसलाधार बारिश और हवा का ऐसा बेपना जोर कि उनके खैम उखड़ गए। तमाम कपड़े और सारा सामान पानी में बग गया। सहरा में उनके पनाह लेने के लिए और तूफान से बचने के लिए कोई जगह न थी और हवा हर लम्हे तेज होती जा रही थी। सुल्तान और वजीर के घोड़े भी रस्सियां तुड़ा कर भाग गए। बूढ़ी दाया ने इस मुसीबत की घड़ी को देखकर दाड़े मार मार कर रोना शुरू कर दिया। शहजादी खदीजा उसे दिलासा दे रही थी, अम्मा जान, हौसला रखो, खुदा हमारा निगहबान और मुहाफिज है, वह जरूर मदद करेगा। मगर बेटी, ये तो सोचो कि इस बेसर समानी में हमारा क्या हश्र होगा। क्या खुदा आसमान से हमारी सवारी के लिए ऊंट घोड़े भेजेगा? और अगर रास्ते में डाकुओं ने लूट लिया तो फिर क्या होगा? वह हमें और हमारे नौकरों को लौंडिया गुलाम बनाकर ले जाएंगे और किसी के हाथ बेच डालेंगे। ये कहकर बुढ़िया ने फिर आंसू बहाने शुरू कर दिए। शहजादी खदीजा ने कहा, अम्मा जान, खुदा की जात से मायूस नहीं होना चाहिए, वह हमारी जरूर मदद करेगा। सुनो, मेरे पास एक मुकद्दस तावीज़ है जो मुझे मेरी मरहमा माँ ने दिया था। इसमें यह खूबी है कि हर मुसीबत में काम आता है। ये कहकर शहजादी ने सतार की शक्ल का बना हुआ किसी दत्त का एक चमकदार टुकड़ा दाया को दिखाया।
ये धात का टुकड़ा भला क्या काम करेगा? दाया ने मुंह बनाकर कहा। अभी तुम्हें इसका करिश्मा दिखाती हूँ। शहजादी खदीजा ने वो तवीज़ अपनी गर्दन से निकालकर दाईं हथेली पर रखा और फिर मुंह ही मुंह में कुछ पढ़कर तावीज़ पर फूंक मारी और इसके बाद बोली, ए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुक़द्दस तावीज़, हम इस वक्त सख्त मुसीबत में गिरफ्तार हैं। खुदा के वास्ते हमारी इस मुसीबत को दूर कर। अब यह अल्फाज शहजादी ने अदा ही किए थे कि एक जोर का धमाका हुआ और एक हैबतनाक शक्ल का देव नमूद होकर शहजादी के सामने आन खड़ा हुआ। देखते ही देखते बूढ़ी दाया ने डर कर चीख मारी और बेहोश हो गई। यह देव वही था जिसने सुल्तान अहमद की छोटी बहन से शादी की थी, लेकिन शहजादी खदीजा को इस बारे में कुछ पता न था। फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत बजा लाऊं? देव ने अदब से झुककर कहा। हमें किसी महफूज मुकाम पर पहुंचाओ। शहजादी ने हुक्म दिया। बहुत बेहतर। देव ने कहा, मैं आप सबको अपने घर ले चलता हूँ, वहाँ आप हिफाजत से रहेंगे। यकायक काफिले वालों ने महसूस किया कि जमीन उनके कदमों तले से खिसती जा रही है और वह फजा में बुलंद होते चले जा रहे हैं। खौफ से उन्होंने आंखें बंद कर लीं। उनमें सुल्तान अहमद और उसका वजीर भी शामिल थे। थोड़ी देर बाद उनके पांव जमीन पर लगे और सबने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोल दी। क्या देखते हैं कि वह एक खूबसूरत वादी में खड़े हैं जिसके चारों तरफ ऊंचे ऊंचे बर्फानी पहाड़ हैं। वादी के दरमियान एक शानदार महल बना हुआ है जिसके इर्द गिर्द निहायत हसीन बाग हैं। वह देव उन्हें उस महल में लेकर गया। इतने में एक खूबसूरत औरत महल से निकलकर सामने आई और सुल्तान अहमद हैरत से देखने लगे कि उसकी चौथी बहन थी भाईजान। वह खुशी से चिल्लाई और सुल्तान अहमद के गले से लिपट गई। हमारे मकान में तुम्हारा आना मुबारक हो। खुदा की पनाह, तुम यहाँ रहती हो? सुल्तान ने कहा। क्या वह देव जो हमें मुसीबत से निकाल कर लाया वही तुम्हारा शौहर है? मैंने उसे पहचाना नहीं। हाँ भाईजान, वह मेरा शौहर है और मैं इसके साथ बहुत खुश हूँ। मुझे इससे अच्छा शौहर नहीं मिल सकता था। खुदा का शुक्र है कि तुम इससे खुश हो, वरना मैं तो डरता था कि ना जाने ये देव तुम्हारे साथ क्या सलूक करेगा। अगर अब्बा जान की वसीयत ना होती तो शायद मैं तुम्हारी शादी कभी भी इसके साथ करने पर राजी ना होता, मगर अब जब सोचता हूँ तो एहसास होता है कि अब्बा जान की वसीयत में ज़रूर कोई ना कोई हिकमत छुपी हुई थी। खुदा मालूम हमारी बाकी तीनों बहनें कहाँ और किस हाल में हैं। भाईजान, जिस बहन की शादी आपने जंगल के बादशाह शेर के साथ की थी वह यहाँ से करीब ही रहती है, चाहो तो उससे मिल सकते हो। यह सुनकर सुल्तान अहमद बहुत खुश हुआ। उन्होंने 3-4 दिन उसके महल में क़याम किया। सुल्तान की बहन और उसके शौहर देव ने सबकी खातिर मदारत की और शहजादी खदीजा, बूढ़ी दाया और उसके नौकरों को नए कपड़े बनाकर दिए। सवारी के लिए ऊंट और घोड़े भी मुहैया किए गए। इसके बाद उन सब ने इजाज़त ली और शेर के मकान की जानिब रवाना हुए। सुल्तान का काफ काला जंगल में दाखिल हो गया। जंगल के बीचों बीच एक आलीशान मकान दिखाई दिया। उस मकान के दरवाजे के पास शेर का एक बहुत बड़ा बुत रखा हुआ था। सुल्तान समझ गया कि यही वह मकान है जिसमें बड़ी बहन का शौहर रहता है। सुल्तान ने आगे बढ़कर दस्तक दी। थोड़ी देर बाद मकान के अंदर से शेर के डरने और गरजने की हैबत नाक आवाज सुनाई दी। सब के सब लर्ज हुए थे और कांप रहे थे। सुल्तान अहमद ने सल्ली दी और कहा कि घबराने की कोई बात नहीं। इतने में दरवाजा खुला और एक लंबा चौड़ा शेर खड़ा नजर आया। उसका जबड़ा खुला हुआ था और शेर के बड़े बड़े नुकीले दांत दिखाई दे रहे थे। शेर को इतने करीब आते देखकर बूढ़ी दाया चीख मारकर बेहोश हो गई। खुशामदीद, खुशामदीद। प्यारे सुल्तान अहमद शेर ने उसे पहचान लिया और खुश होकर इंसानी आवाज में कहा, आइए आइए, बेखौफ होकर गरीब खाने में तशरीफ ले आइए। अरे ये बड़ी भी शायद डर के मारे बेहोश हो गई हैं, इन्हें भी ले आइए, अभी होश में आ जाएंगी। ये सुनकर सबकी जान में जान आई और वह मकान के अंदर चले गए। देखते हैं कि हर कमरा सजा हुआ है। बहुत से नौकर चाकर गुलाम कनीज बांध दिया कामों में मसरूफ हैं। मेहमानों के आने की खबर सुनकर सुल्तान अहमद की बड़ी बहन भी अपने कमरे से निकल आई। दोनों बहन भाई गले लिपटकर खुशी के आंसू बहाने लगे। बड़ी बहन ने बताया कि वह अपने शौहर से बहुत खुश है और उसे यहाँ कोई तकलीफ नहीं। शेर ने इसरार करके उन्हें कई दिन अपने मकान में ठहराया और खाते तवाजा की इंतहा कर दी। तरह तरह के खाने मेहमानों के लिए रोज पकते और हर किस्म का फल उनके सामने रखा जाता। एक दिन सुल्तान अहमद ने अपनी बहन से जिक्र किया कि वह शहजादी खदीजा से शादी करना चाहता है। क्या बहन, तुम इस मामले में मेरी मदद कर सकती हो? ये सुनकर बहन बहुत खुश हुई क्योंकि वह भी शहजादी खदीजा को पसंद करने लगी थी। उसने शहजादी की रजामंदी हासिल की और उससे अगली रात ही बड़ी धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। इस सुनहरी तिलिस्मी आईने की पेशगी पूरी साबित हुई। शादी के बाद सुल्तान अहमद और उसकी बीवी खदीजा शेर के घर में 1 माह तक मेहमान बनकर रहे। इसके बाद उन्होंने वहां से जाने की इजाज़त हासिल की। सुल्तान शेर से कहने लगा,
भाई, तुमने जिस खुलूस और मोहब्बत से मेहमान नवाजी के फराइज सरामर हैं, यहाँ हमने अपनी जिंदगी का बेहतरीन वक्त गुजारा। काश मैं इस काबिल होता कि तुम्हारी कोई खिदमत बजा लाता। अगर कोई काम मेरे लायक हो तो जरूर बताओ। हाँ भाई, एक काम ऐसा जरूर है जो तुम मेरे लिए कर सकते हो। शेर ने ठड़ी आह भरी, अगर तुम्हें कहीं से किसी देव का कटा हुआ पंजा मिल जाए तो लेते आना, ताकि मैं उसको आग में फेंक कर अपनी असल इंसानी सूरत पर वापस आ जाऊं। देव का कटा हुआ पंजा। सुल्तान अहमद ने हैरत से कहा, भाई तुमने मुझे पहले क्यों ना बताया? मेरी जेब में भी इस वक्त एक पंजा मौजूद है। उसको मैंने इस कब्रिस्तान में हलाक किया था जहाँ मेरे बाप की कब्र है। मुझे मालूम था कि देव के पंजे जादू का तोड़ करने में काम आते हैं। ये सुनते ही शेर खुशी से उछल पड़ा और उसने उसी वक्त नौकरों को हुक्म दिया कि अलाव रोशन किया जाए। आग जलाई गई और देव का पंजा उसमें फेंक दिया गया। पंजे का आग में डालना ही था कि उसी जगह से शेर गायब हो गया और उसकी जगह एक हसीन नौजवान सुल्तान अहमद को अपने सामने खड़ा दिखाई दिया। एक बार फिर उस मुकाम पर खुशी के शादी आने बजने लगे और दिन रात जश्न होने के चंद रोज बाद मेहमानों ने फिर जाने की इजाजत तलब की। बड़ी बहन और उसका शौहर एक मर्तबा मेहमानों को जंगल की आखिरी सरहद पर रुखसत करने आए। अब उन्होंने शिमालय किया। 3 रोज तक सुल्तान अहमद और उसकी बीवी शहजादी खदीजा वहां से रवाना हुए और इस मुल्क में आए जहां सुल्तान अहमद की हुकूमत थी। रैया ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। बरसों तक दोनों ने अपने मुल्क पर हुक्मरान व बूढ़े हो गए। फिर अल्लाह ताला ने उनको अपने पास बुला लिया। उम्मीद करती हूँ कि यह आज की मज़ेदार और इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया।